Hello everyone, आप सभी का हम स्वागत करते हैं welcome to our verse by verse Bible study through the book of John. यूहन्ना के इस बाइबल अध्ययन में हम सभी का So स्वागत करते हैं। today we are going to see John chapter 7, आज जो है हम यूहन्ना उसका 7वां अध्याय देखने वाले हैं and John chapter 7 takes place during the feast of tabernacle. और ये जो 7वां अध्याय है ये उस पर्व के दिन के समय का है। Right? Parva is right. So there are 7 feasts in the Old Testament, पुराने नियम में हम देखते हैं कि 7 पर्व है and that one feast was Feast of Tabernacles. और उसमें का जो एक पर्व है वो इस वाचा का पर्व है। Right. So in John chapter 7, that is the time during which John chapter 7 is going on. और जो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय है उसका जो समय है जो चल रहा था। So the title I have displayed, what ye think of Christ. और जो शीर्षक यहाँ पर मैंने दिया है वो ये है कि वो ख्रिस्त के विषय में वे क्या सोचते हैं। Right, because throughout the chapter 7 you will find what others are thinking about Christ. क्योंकि पूरे जो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय है उस पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि वो दूसरे लोग जो है वो ख्रिस्त के विषय में क्या सोचते हैं। Right, we will see about what Pharisees think and what other people were thinking of Christ. और हम देखेंगे कि फरीसी लोग ख्रिस्त के विषय में क्या सोचते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो उसके विषय में क्या सोचते If हैं। you turn with me to Matthew chapter 22, hold on to John chapter 7, but turn with me to Matthew chapter 22 and verse 42. Matthew chapter 22 and verse 42. I'll read verse 41. While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, What think ye of Christ? Whose son is he? And they say unto him, The son of David. मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो, वह किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। So the question Jesus asked, What ye think of Christ? क्योंकि वो प्रश्न जो प्रभु यीशु ने वहां पर पूछा कि ख्रिस्त के विषय में तुम क्या सोचते हो, And that title, it fits John chapter 7. और वो जो शीर्षक है वो इस यूहन्ना उसके 7वें अध्याय में वो फिट होता है। So when we are studying this John chapter 7, और जब हम इस यूहन्ना उसके 7वें अध्याय का अध्ययन you will करेंगे understand the opposition to Jesus Christ is increasing. तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु को जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में जो लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे। And throughout the chapters we will find many questions और इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे बहुत से प्रश्नों को हम देखेंगे and conflicting opinions about the identity of Jesus Christ. और उनके जो मत है उसमें विभिन्नता हम देखेंगे। We will find in this chapter that some want to kill him. और हम ये इस अध्याय में देखेंगे कि कोई लोग ऐसे हैं जो उसे मारना चाहते His हैं own brother didn't believe in him. और उसके जो खुद के भाई है वो उस पर विश्वास नहीं The करेंगे world hates him. और जो संसार है वो उसके विरुद्ध में होगा। Some say that he is a good man. और कुछ कहेंगे कि वो एक भला मनुष्य है, Some say he is a deceiver. कोई कहेगा कि वो धोखा देने वाला Some है, say he is a prophet. कोई कहेगा वो भविष्यवक्ता है And others says this is the Christ. और दूसरे कुछ कहेंगे कि ये मसीह है। So throughout the chapters there are a lot of questions and conflicting ideas or thoughts concerning Jesus Christ. तो इस पूरे अध्याय में जो है बहुत से प्रश्नों को हम देखेंगे और बहुत से मतभेद और विचारों में मतभेद को हम देखेंगे। So the title I have written, What think ye of Christ? सो ये जो आज का शीर्षक है कि ख्रिस्त के विषय में वे क्या सोचते हैं। We'll first look what they are thinking. सबसे पहले हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं Last we'll examine what you think of Christ. और आखिरी में हम इसका परीक्षण करेंगे कि आप क्या सोचते हैं। The problem was that they were not accepting Jesus Christ as their Messiah. समस्या ये थी कि वो जो है प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता एक मसीहा के रूप में उसका स्वीकार नहीं कर रहे थे। Right? There were lot of opinions regarding Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत से मत उनके अलग अलग मत थे। But John chapter 7 shows that there are more evidence. परंतु ये जो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय ये बहुत से सबूतों को वहां पर देता है। And the problem is not the evidence. और ये जो सबूत है उसमें कोई समस्या नहीं है, Problem is their heart. परंतु उनके हृदय में वो समस्या है। Because Jesus told the truth, क्योंकि प्रभु यीशु ने वहां पर सच्चाई को he बताया fulfilled the scriptures, और उसने पवित्र शास्त्र के वचनों को पूर्ण he किया demonstrated the signs so that they may believe. और प्रभु यीशु मसीह ने कुछ चिन्हों को वहां पर दिखाया कि वो विश्वास करने पाए। Yet we'll see that there was a great division among them. फिर भी हम देखते हैं कि उनमें एक महान विभाजन को हम देखते हैं। That I have told you that our God is a divider. और मैंने आपको कहा है कि हमारा जो परमेश्वर है वो विभाजन करने वाला Jesus said, परमेश्वर है। I came not to give, what you say, but a peace,
but a sword, he said. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं शांति देने नहीं आया हूँ परंतु एक तलवार के साथ वो आया He है। said, peace I give unto you. मैं और वो कहता है कि शांति मैंने आपको दे दी But है। when there is Christ, there is division. परंतु जहाँ पर ख्रिस्ट होता है वहां पर विभाजन होता Because है, Jesus is the light. क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो प्रकाश है। So we'll see there are this throughout the we'll cover today entire John chapter 7. और आज जो है हम पूर्ण यूहन्ना उसके 7वें अध्याय को देखेंगे So we'll see we'll divide this chapter in 3 parts. और हम इस अध्याय को जो है वो 3 भागों में We'll विभाजित see करेंगे। first once verse 1 to 13 different opinion about Christ. और वचन 1 से 13 तक हम देखेंगे कि ख्रिस्त के विषय में उनके विभिन्न मतों Then को, we'll see divine evidence concerning Christ. और उसके बाद 14 से 39 में हम देखेंगे कि ख्रिस्त के विषय में उनके जो दैविक उनके जो सबूत है उसको, And then we'll see the decisive reactions to believe. और उसके बाद हम देखेंगे कि ख्रिस्त के प्रति उनके निर्णयात्मक प्रतिक्रियाएं क्या है उसको हम देखेंगे। That we'll see. So the question is what you think of Christ. सो प्रश्न, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वे ख्रिस्त के विषय में क्या सोचते So हैं। we have divided this John chapter in these 3 sections. और हमने इस प्रकार से 3 भागों में इसे विभाजित किया है। So we'll start, we'll pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. Thank you for, Lord, giving this opportunity to continue through the book of John. I pray that as we study your word, help us, you lead us, you guide us, O Lord, through your Holy Spirit, so that we may understand what is written therein, O Lord. Help these words to come alive in our hearts, so that it may be useful for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So the first point we'll see verse 1 to 13, different opinions about Christ. हम सबसे पहले वचन 1 से 13 तक देखेंगे कि ख्रिस्त के विषय में विभिन्न मत। We have seen John chapter 4, John chapter 5, and what means Jesus Christ gave simple examples. और हमने यूहन्ना उसके 4थे अध्याय 5वें अध्याय को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक सीधे और सरल उदाहरणों को दिया, Right, like water birth, right, spiritual birth, जो पानी का बपतिस्मा है और जो आत्मिक बपतिस्मा है। right. He told about no, not baptism. You can say means born again. और नए सिरे से जन्म लेना वो Right, है, you get born again by spirit. और हम आत्मा से जो है वो नए सिरे से जन्म Then लेते he हैं। gave example of water. और उसके बाद उसने पानी का उदाहरण दिया, Then he gave example of bread. और उसके बाद उसने रोटी का उदाहरण दिया, And he gave simple examples. और उसने ऐसे सीधे और सरल उदाहरण दिए। Tell that I am the water, I am the living water, I am the bread of life. और उसके द्वारा उसने ये कहा कि मैं जीवित पानी हूँ, मैं वो जीवन की रोटी हूँ। And yet he performed miracles also. और उसके बाद उसने कुछ आश्चर्य कर्मों को भी किया। Yet we see the Jews were trying to kill him. फिर भी हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग हैं वो उसे मारना चाहते थे। Verse 1, we'll see. So verse 1 to 13, different opinions about Christ we'll see in verse 1 to 13. Okay. वचन 1 से 13 में हम देखेंगे कि ख्रिस्त के विषय में जो अलग विभिन्न मत है उसे। First point we'll see the Jews wanted to kill him. सबसे पहली बात कि जो यहूदी लोग थे वो उसे मारना चाहते See थे। verse 1. After these things, Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him. इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। See, the hostility toward Jesus Christ, the hatred toward Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो हेट जो उनके मनों में था, that started, if you see, when he healed that impotent man in John chapter 5. और वो तब से उनके मन में वो उस बात की शुरुआत हुई जब यूहन्ना उसके 5वें अध्याय में उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। Right, in John chapter 5 verse 16 you see, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him, because he had done these things on the Sabbath day. क्योंकि इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। So their intention was we will kill him. उनकी सोच ये थी, उनका उद्देश्य ये था कि वह हम उसे मार डाले। But in John chapter 7, if you see verse 20, पर they were denying their murderous intention. परंतु यूहन्ना उसके 7वें अध्याय और 20वें वचन में हम देखते हैं कि लोगों ने उसे उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है। Right, they were denying that who is killing you. और वो इस बात का वहां पर इनकार कर रहे हैं कि कौन तुझे मार The डालना people चाहता है। answered and said, Thou hast a devil. Who goeth about to kill thee?
और लोगों ने वह उससे उत्तर दिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है और कौन तुझे मार डालना चाहता है। Right? They were saying, who is going to kill you? और वो कह रहे हैं कि कौन तुझे मार डालना Why you चाहता are है saying like this? और क्यों आप इस प्रकार से कह They रहे were हो। denying their intention. और वो जो उनकी जो सोच थे, उनके जो इंटेंशन है, उसका वो इनकार But कर रहे throughout हैं। the chapter we will see they wanted to kill him. पर तो पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि उनकी इच्छा यही थी कि वे उसे मार डालें, But they cannot kill him पर वो उसे मार नहीं पाए, because for his death there is an appointed time. क्योंकि उसके जो मृत्यु है उसके मृत्यु का एक निर्णयात्मक समय था। See verse 30. Then they sought to take him, but no man laid hands on him because his hour was not yet come. 13 30. हाँ. तो अभी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। Right? Why? क्यों? No, 30. अच्छा, 30। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। So Jesus Christ's death timetable is not according to men but is according to God. क्योंकि प्रभु यीशु के जो मृत्यु का जो समय था वो मनुष्य के हिसाब से नहीं था, परंतु वो परमेश्वर के When हिसाब the से। hour came, he laid down his life. परंतु जब वो समय आया तो खुद से होकर उसने अपना जीवन दिया, Not that anyone take life from him. और परंतु दूसरा कोई किसी ने उसका जीवन नहीं लिया, परंतु खुद से उसने So जीवन the दिया। first we see in verse 1 that Jews were trying to kill him. और सबसे पहले वचन में हम देखते हैं कि यहूदी जो है वो उसे मार डालने का Then यत्न कर verse रहे 2 थे। we'll see now the Jews' feast of tabernacle was at hand. और यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व जो था वो निकट था। Verse 3 we'll see his brethren did not believe in him. Verse 3 his brethren therefore said unto him, depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. और इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। Who are these brethren? और वो भाई लोग जो है वो भाई कौन है? These are the brothers and brother of Jesus Christ, brothers of Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह के भाई है। Jesus Christ had brother and sisters. प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग थे और बहनें भी थी। Jesus Christ was born of a virgin, right? Mary. और वो जो है प्रभु यीशु जो है वो पवित्र रीति से कुमारी मरियम से वो उसने जन्म लिया। But after the birth of Jesus Christ, Mary and Joseph had sons and daughters. परंतु प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद जो यूसुफ और मरियम थे उन्हें और भी बच्चे हुए। Right? It is not like Mary is all-time virgin and you should worship her. और ये इस प्रकार से नहीं है कि जो मरियम है वो पूरे उसका जीवन भर वो एक कुंवारी रही, परंतु ऐसा नहीं है। Right? She had sons and daughters. उसको लड़के और लड़कियां थी। Four sons and I think so 3 sisters. और उसके 4 लड़के थे और Jesus Christ. 3 लड़कियां थी। Right? So the names of 3 sisters are not given. और ये जो 3 बहनें हैं इनका नाम पवित्र शास्त्र में नहीं दिया The है, names of brother are given. The words in the Bible it says the Lord's brother. परंतु जो 4 भाई लोग हैं उनका नाम पवित्र शास्त्र में दिया है। Right? It is mentioned the Lord's brother. वो इस प्रकार से कि प्रभु के भाई, यीशु के भाई, इस In प्रकार book से of वहाँ पर Acts लिखा we है। have seen that. और प्रेरितों के काम में हमने उससे देखा है। So what their own brothers were thinking. His brother was 3. Therefore said unto a brethren said unto him, depart hence and go into Judea, that thy disciples may also see the works that thou doest. इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे। His brothers wanted that Jesus Christ will show miracles publicly. और उसके भाई लोग चाहते थे कि लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उन आश्चर्य कर्मों को करे। Verse 4 For there is no man that doeth anything in secret, they are saying to him, he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world. क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। You know what was their intention? Verse 5 For neither did his brethren believe in him. क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। They misunderstood why Jesus Christ, what about his mission. और प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है उसको उन्होंने नहीं समझा था। So Jesus Christ is his own family also, they were not believing. और प्रभु यीशु मसीह का जो खुद का परिवार था वो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। Then in verse 1 we see that Jews tried to kill him. और वचन 1 में हमने देखा कि जो यहूदी है वो उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। So Jesus Christ was not there to gain popularity. और प्रभु यीशु मसीह वहां पर कोई प्रसिद्धता प्राप्त करने के लिए नहीं He थे, came to work the work of God. पर वो इसलिए आया था कि वो परमेश्वर का कार्य करे।
right? So he died, he was buried, and he rose again from the third day. वो मारा जाए, वो गाड़ा जाए और वो तीसरे दिन फिर से जी उठे। So we can learn from this that popularity in a ministry, और इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो सेवकाई में जो प्रसिद्धता है, right? That is means popularity is not a measure of true ministry. और जो जो सच्ची सेवकाई है उसमें प्रसिद्धता जो है ये एक ठीक बात नहीं है। Means people say, how many members are in your church? और लोग इस प्रकार से कहते हैं कि आपकी कलीसिया में कितने लोग हैं। Right? That is not how you measure the success of a ministry. वो इस प्रकार से जो है आप किसी कलीसिया का, किसी सेवकाई का जो है सक्सेस गिन नहीं सकते। But how you can measure a true ministry? पर एक सच्ची सेवकाई को आप किस प्रकार से गिन सकते हो? Are those people who are in the church जो लोग कलीसिया में है वे लोग obeying God? क्या वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं? If they are obeying God, then that ministry is true. अगर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं तो वो सेवकाई, वो कलीसिया सच्ची है। Right? So Jesus Christ's ministry, no one was believing on him. और प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वहां पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था Very few followers. और बहुत से थोड़े लोग उसके Sometimes पीछे he होने was थे alone. और कई कई बार वो अकेला था। That is a picture of a ministry. और वो जो है एक सेवकाई का चित्र है। We see the Jews were trying to kill him. His और- own brothers were not believing on him. और हम देखते हैं कि यहूदी लोग जो है उसे मार डालना चाहते हैं, उसके जो खुद के भाई लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते Verse हैं। 6 we'll see the world hated him. He only said, Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is already ready. तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। Verse 7 he says, The world cannot hate you, but me it hateth, because I testify of it that the works thereof are evil. संसार तुमसे बैर नहीं करता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। Right? The world cannot hate Jesus if he only talked about love. और प्रभु यीशु मसीह अगर सिर्फ प्रेम के विषय में बताते तो इस संसार कभी भी उसके विरोध में ना होता। But the Bible and Jesus Christ declare about the sin. परंतु प्रभु यीशु मसीह और जो पवित्र शास्त्र है वो जो है वो पाप के विषय में John हमें chapter बताता है। 15 verse 18. यूहन्ना 15 उसका If the 18। world hate you, ye know that it hated me before it hated you. यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। Right? The world will hate Christ. कि जो संसार है वो प्रभु यीशु मसीह का बैर Because करेगा, when Christ comes, there is division. क्योंकि प्रभु यीशु जहाँ पर आता है वहाँ पर विभाजन होता है, There is division. वहाँ पर विभाजन होता There है, is no compromise. वहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। So the Christians are to witness the world, और इसीलिए जो मसीह लोग हैं उन्होंने इस संसार की गवाही लेना चाहिए। not to conform with the world. ये एक संसार के साथ हमें घुल मिल नहीं जाना है। Right? Don't think that you are here permanently. और इस प्रकार से हम ना सोचे कि हम हमेशा के लिए संसार में हैं। 1 John chapter 2, letter of John, 1 John chapter 2 verse 15, what the Bible says, 2:15, Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of Father is not in him. तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। If a church becomes worldly अगर कलीसिया अगर सांसारिक हो जाती है in order to win the world, और इस प्रकार से कि वो संसार को जीतने के लिए, it will lose its ability to stand against the world. तो इस संसार के विरोध में खड़े रहने की उनकी जो ताकत है उसे वो खो देती है। If the church will compromise on everything, अगर चर्च अगर हर एक बातों में अगर तड़जोड़ करने लगता है, if we started singing here the contemporary Christian music, अगर जो कंटेम्पररी जो मसीह लोगों की जो गीत है वो अगर हम यहाँ पर गाना शुरू right, करते I हैं will talk about what's the problem with that. तो हम उसके विषय में हम बात करेंगे कि उसमें समस्या क्या है। These Christian songs who sound like world, और ये जो मसीह गीत है वो इस संसार के गीतों के समान हो it's चुके हैं। all compromise. If we start doing here, और वो अगर सारी बातों को हम यहाँ पर करना शुरू करें you are loving the world. तो वो ये बात को बताता है कि हम संसार से प्रेम रखते हैं, Because those songs, if we see, क्योंकि are वो appeal to the flesh. क्योंकि वो गीत जो है अगर हम उसे गाते हैं तो वो हमारे शरीरों को वो उत्तेजित करते हैं। So Bible says, do not conform to the world. क्योंकि वचन यहाँ पर कहता है कि संसार के सदृश न बनो, Right? Because Jesus said the world hates me first, and then if you follow me, it will hate you also. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि संसार ने मेरा बैर किया और अगर आप मेरे पीछे हो लेते हो तो संसार आपका बैर करेगा। If you see verse 8, then next we'll see
what Jesus said is that in 7, I testify of it that the works thereof are evil. Verse 7 and verse 8, go ye up unto this feast. I go not up yet unto this feast, for my time is not yet full come. तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। Right, for my time, but Jesus goes secretly to this feast. परंतु प्रभु यीशु जो है वो एक अकेले जो है एकांत में जो है गुप्त रीति से जो है इस पर्व में गया। If you see in verse 8, अगर हम वचन 8 में देखते in हैं, most modern Bibles, that word yet is removed. और जो आधुनिक बाइबल से उसमें जो शब्द है कि कौन सा, For my time is not yet. क्योंकि अभी Full- तक full मेरा come. समय जो है वो पूरा नहीं हुआ। Right, that yet word is removed, saying that, and if you see, read on, that Jesus went to the feast. He said that I am not going, but he went. They are making Jesus Christ a liar by removing words. और जो अभी तक वो जो येट जो शब्द है उसे निकाल कर वो प्रभु यीशु मसीह को झूठा साबित करते हैं। But that time he is talking about is entirely different thing. परंतु वो जो समय जिसके विषय में वो बात कर रहा है वो अलग समय था, The time of his death. उसके मृत्यु का समय। Right, then verse 9, when he said these things unto them, he abode still in Galilee. वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। Verse 10, we have seen Jews wanted to kill him, his brother didn't believe him, the world hates him. और हमने देखा कि जो यहूदी है वो उसे मार डालना चाहते हैं, जो उसके भाई लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते, और ये जो संसार है वो उससे बैर करता है। So then now we'll see the people are also divided over him. और अभी हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो भी जो है वो यहाँ पर विभाजित हो चुके हैं। Verse 10, when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret. परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? और यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है। Verse 12, and there was much murmuring among the people concerning him. For some said, he is a good man. Others say, nay, but he is a deceiveth the people. Howbeit no man spake openly of him for the fear of Jews. और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता So we था। see from verse 10 to 13 onwards, there are different opinions. और हम देखते हैं कि जो 1 से लेकर 10 तक हमने देखा कि अलग अलग लोगों के उसके विषय में मत है। From 1 to 13, we have seen the Jews wanted to kill him, the brethren didn't believe him, the world hated him. और 1 से 13 में हमने देखा कि जो यहूदी लोग हैं उसे मार डालना चाहते हैं, और जो उसके भाई लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं करते, और ये जो संसार है उसका बैर करता है। Right? Some wanted to kill him. और कोई चाहता है कि वो उसे मार डाले। Some say that he was a good man. कोई कहता है कि वो भला मनुष्य है, Some say that he was a deceiver. और कोई कहता है कि वो भरमाने वाला है, वो धोखा देने वाला है। Right? Can you open this curtain? Okay. So, but by calling Jesus a good man, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को एक भला मनुष्य कह के पुकारना it is not enough. ये काफी नहीं है। Jesus Christ is Son of God. और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, He is the Savior. और वो उद्धार करता है, He is Christ. वो ख्रिस्ट है। Right? So, the question is not simply what people say about Jesus. ये जो प्रश्न है ये सीधा प्रश्न नहीं है कि लोग उसके प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या सोचते हैं, What they say. और वो क्या कहते हैं, But what do you believe about him? परंतु आप उसके विषय में क्या विश्वास करते We हो। see there are a lot of opinions in this. क्योंकि हमने देखा कि बहुत से विभिन्न मत इस अध्याय में है। Right? Suppose we will say that a man is in a trial, in a courtroom, और एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो कोर्ट में है, and there are many witnesses. और बहुत से वहाँ पे गवाह है, The witnesses and outside the court, और जो गवाह है वो उस कोर्ट के बाहर है, they are discussing. और वो बातचीत कर रहे हैं। One say he is guilty. और एक कहता है कि वो गिल्टी है, वो दोषी है, One say he is innocent. और वो कोई कहता है कि वो भला है, सीधा One है। say he is a good man. कोई कहता है कि एक वो सीधा और खरा मनुष्य है, Others say he is a deceiver. और कोई कहता है कि वो भरमाने वाला है। By their opinions, और उनके मतों के द्वारा though they are witnesses, वो गवाही है तो भी, that is not the truth. परंतु वो सच्चाई नहीं है। The truth must be supported by an evidence. परंतु जो सच्चाई है वो एक सबूतों के साथ पेश की जानी So चाहिए। that is what John chapter 7 is.
और यही जो है वो यूहन्ना उसका 7वां अध्याय है। There are different opinions, यहाँ पर विभिन्न विभिन्न मत है, but Jesus gave them evidences परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें उन सबूतों को देता है। to claim what he says he is. तो जो वो क्लेम करता है कि जो मैं हूँ, उसके लिए वो सबूतों को देता So है। it is not important what people say और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोग क्या कहते हैं about Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के विषय What में, does the evidence say about Jesus परंतु Christ? सबूत प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं ये Many महत्वपूर्ण है। people have thousands of opinion about Jesus Christ. बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हजारों विचार उनके अंदर है, But if you see, they don't seek the truth, the evidence. परंतु हम देखते हैं कि वो सबूतों के हिसाब से वो सच्चाई को नहीं ढूंढते So हैं। 1 to 13 we have seen that your faith, और एक वचन 1 से 13 तक हम देखते हैं कि आपका विश्वास, we can practical things we can learn. और इन प्रैक्टिकली इन बातों से हम कुछ सीख सकते हैं। Your faith cannot be built on others' opinions. हमारा जो विश्वास है वो दूसरों के मत पर बिल्ड नहीं होना Right? चाहिए। Some say Jesus is a good man, a कोई- religious leader, कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक भला मनुष्य है और वो धार्मिक प्रधान है he is a prophet, और वो भविष्यवक्ता है, right? But that is not important. What the Bible says. परंतु वो महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता Last है time we ये have महत्वपूर्ण seen है। what Peter said, "Thou art Christ, the Son of living और God." पिछले समय में हमने देखा कि पतरस कहता है कि आप हमारे प्रभु मसीह हो, So your faith must rest upon the word of God, not opinion of. और हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन पर स्थायी होना चाहिए, ना कि इन संसार के लोगों पर। So next thing we can learn from verse 1 to 30 that don't be surprised when the world rejects Christ. और 1 से 13 में हम देखते हैं कि हमें तब सरप्राइज नहीं होना है कि जब संसार जो है उसके विरोध में होता है। Right? Jesus directly exposes the sin and demands repentance. और प्रभु यीशु जो है वो सीधे तौर पे जो है वो पाप को खुल्लम खुल्ला दिखाता है और वो हमारे पापों के प्रति क्षमा को मांगता है। Right? He demands repentance that you come to me. He says, he declares, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस पाप के प्रति वो क्षमा को मांगता है और वो कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। So the church is so that we can reach the world. और Reach the world. Reach the world. और With the gospel. और ये हम सुसमाचार के द्वारा जो है इस संसार में पहुंच सकते हैं। Not that we assemble ourselves, or means not to gather the world and just be a good community. और सिर्फ हमें इस संसार को जो है वो एकत्रित करके एक अच्छी कम्युनिटी नहीं बनाना है। So what things we have learned, we'll see. So familiarity with Jesus will not save you. और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो फैमिलियरिटी है वो हमें नहीं बचा सकती, Verse 5 says, neither did his brethren believe in him. क्योंकि वचन 5 में कहा गया है क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। His own family brothers were not believing in him. उसके खुद के जो परिवार के जो उसके भाई लोग हैं वो उस पर विश्वास नहीं Means करते थे। familiarity with Jesus is not same thing as having faith in Jesus. और परिवार के जो लोग हैं और उसके परिवार का एक भाग होना ये इस बात का सबूत नहीं है कि उस पर विश्वास I करना। have seen so many Christians और मैंने ऐसे बहुत से मसीह लोगों को देखा who है are grown up in a church, जो एक कलीसिया में जो उनकी बढ़ोतरी होती है, who hear the Bible preaching, जो बाइबल में से प्रचार को सुनते हैं who know Christian songs, और जो मसीह गीतों को जानते हैं, but yet they are not saved. पर फिर भी उनका वो बचाए नहीं गए, उनका They उद्धार नहीं have हुआ है। Bible believing parents, और उनके जो माता पिता है वो पवित्र शास्त्र पर विश्वास करने वाले हैं, yet they are not saved. फिर भी वो जो है उनका उद्धार नहीं हुआ Means है। going to a church, hearing Bible preaching, but don't have a personal trust in Jesus Christ. वो कलीसिया में जाते हैं, पवित्र शास्त्र में से प्रचार को सुनते हैं, परंतु व्यक्तिगत रीति से जो अगर हम देखते That हैं तो उनका person will उद्धार नहीं not हुआ get है, saved. तो उनका उद्धार नहीं हुआ है। So being around Christians will not save you. एक मसीह लोगों के बीच में होना ये हमें बचाता नहीं है। Question is what ye think of Christ. परंतु प्रश्न ये है कि क्रिस्ट के विषय में वे क्या सोचते हैं। Do you accepted him as a personal savior? क्या- Have you accepted him as a personal savior? क्या आपने उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है? So familiarity with Jesus is not same thing as faith in Jesus. प्रभु यीशु मसीह के साथ वो परिवारिकता में होना ये इस बात को सिद्ध नहीं करता कि आप उस पर विश्वास करते हो। So we have also learned that do not measure a ministry by popularity. और हमने ये भी देखा कि जो सेवकाई है उसका हम जो मूल्यांकन है वो उसके प्रसिद्धता के साथ में ना करें। Right? Jesus spake everything publicly.
और प्रभु यीशु मसीह जो भी बात बोलता था वो लोगों के बीच में खुल्लम खुल्ला बोलता था, and he displayed his works publicly. और उसके जो कार्य है वो लोगों के बीच में वो खुल्लम खुल्ला बताता था। Jesus was not controlled by people and the desires, and so that he may be recognized. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों के द्वारा लोग उसे कंट्रोल नहीं करते थे कि लोगों की इच्छा वो पूर्ण करने के लिए नहीं था। Popularity in a ministry is not important. और जो सेवकाई में जो प्रसिद्धता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, Right? How many crowds, views, subscribers, likes, and all. और कितनी भीड़ यहाँ पर है और कितने उनके सब्सक्रिप्शन है और कितने लोग उनको देखने वाले हैं, ये मायने नहीं रखता। Noah preached very few, means that on that time people. और नूहा ने बहुत से थोड़े लोगों में उसने प्रचार किया। Jeremiah preached the rebellious nation. और यिर्मयाह जो है जो बलवा करने वाले जो देश है राष्ट्र है उसमें उन्होंने See, प्रचार Paul, he किया। was preaching and he was imprisoned. और जो पौलुस को हम देखते हैं कि जो कैदी लोग हैं उनको उसने प्रचार किया। Jesus himself was rejected. और प्रभु यीशु मसीह खुद जो है वो उसका अस्वीकार किया गया। Success in God's work is faithfulness to him. और परमेश्वर के कार्य में जो सक्सेस है वो उसके साथ विश्वास योग्यता में है। Jesus was faithful even unto his death. और प्रभु यीशु मसीह उसके मृत्यु तक वो विश्वास योग्य बना रहा। Those things we can learn. और from our history. ये जो बातें हैं उसकी सेवकाई से हम सीख सकते हैं। So we have seen verse 1 to 30 different opinions about Christ. और वचन 1 से 13 में हमने देखा कि ख्रिस्त के विषय में विभिन्न मत। So we have seen opinions. और हमने देखा आज्ञाकारिता। Then we'll move on to evidence. और उसके बाद जो है हम सबूतों की ओर Divine जाएंगे। evidence concerning Christ. और एक ख्रिस्त के विषय में वो जो दैविक सबूत है उसके विषय में हम देखेंगे। We'll see verse 14 onwards. So first we'll see the authority of his doctrine. और उसकी जो शिक्षाएं है उसका जो अधिकार है उसके विषय में हम देखेंगे। The recording is on. So religious leaders had different opinions. जो धार्मिक प्रधान होते हैं उनके अलग अलग मत होते हैं, But Christ gave them enough evidence to know who he was. परंतु ख्रिस्त ने अलग अलग सबूतों को ऐसे बहुत से सबूतों को दिया है कि वो पहचान सके कि वो कौन है। See verse 14. Now about the midst of feast, Jesus went up into the temple and taught. जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। So Jews were marveled. What they were saying in verse 15? Then Jews marveled, saying, How knoweth this man letters, having never learned? तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? Right? How he can know these letters? और वो इस पत्रियों को कैसे जान सकता है? Verse 16. Jesus answered them and said, My doctrine is not mine, but his that sent me. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। Religious leaders had a learning, और जो धार्मिक गुरु होते, धार्मिक प्रधान होते हैं, उनके पास वो शिक्षा होती है, but they don't have the truth. परंतु उनके पास वो सच्चाई नहीं Read in होती है। 2 Timothy 3:7 it says, ever learning. और दूसरा सेकंड तिमोथी 3:7. दूसरा तिमोथी उसके 3 और 7वें वचन में इस प्रकार से कहा गया Bible है, says ever learning but never coming, और ये जो अभी तक जो पढ़ना है परंतु वो कभी भी आना नहीं है, never able to come to the knowledge of truth. वो परंतु वो सच्चाई का जो ज्ञान है वहां तक वो नहीं पहुंचते हैं। That kind of people they were, और इस प्रकार के वो लोग हैं the Jewish leaders. जो यहूदियों के जो प्रधान हैं। Then how, from when Jesus learned? और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ से उसने इस बात को पढ़ा, He learned from the Father. और उसने पिता से उन बातों को सीखा Isaiah पढ़ा। 50 verse 4 says, The Lord God hath given me the tongue of the learned. और यशायाह पुस्तक में इस प्रकार से लिखा गया है कि परमेश्वर ने वो जुबान को उसने दिया है, Tongue of the learned. जो सीखने की जो जुबान है, जीभ है, उसको In उसने John दिया chapter है। 8 verse 28 you will see, he said, Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही ये बातें कहता हूँ। So the Father is teaching Jesus Christ. जो पिता है वो प्रभु यीशु मसीह को सिखाता In है। John chapter 12 verse 49, For I have not spoken myself, but the Father which sent me, he gave me commandment what I should say and what
I should speak. क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूं। That's why Jesus said in John 7:16, "My doctrine is not mine, but His that sent me." इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 7वें और 16 वचन में कहा कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने So वाले का है। Jesus was learned of the Father. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पिता से सीखते हैं Jesus did the Father's will. और 17. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा पूर्ण की। If any man will do His will, he shall know the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. यदि कोई इसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। If any man will do His will. अगर कोई मनुष्य उसकी इच्छा को पूर्ण करता You know है। what is the will of God? We have seen this morning. I talked about. परमेश्वर की इच्छा क्या है हमने आज की सुबह में The देखा। Bible is written in 1 Thessalonians. In everything give thanks. और पहले थेसलोनियंस में हमने देखा कि हर बात में उसे धन्यवाद दो, For this is the will of God क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है in Jesus Christ concerning you. ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में। So key to understand any spiritual truth, और जो किसी भी आत्मिक सच्चाई को जानने के लिए जानने की जो कुंजी है any doctrine, और जो शिक्षा को जानने की you कुंजी should है, have a willing heart. और ये है कि जो इच्छा पूर्ण हृदय है, You should have a willing heart that will obey God. जो इच्छा पूर्ण हृदय जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, ऐसा हृदय होना चाहिए। See, verse John chapter 4 verse 34. John 4:34, Bible says, Jesus said unto them, My meat is not to do the will of him, is to do the will of him that sent me and to finish his work. यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। So Jesus was constantly occupied with the Father's will. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो लगातार जो है परमेश्वर की इच्छा से वो ऑक्यूपाइड। John 17 verse 18, next we'll see, He that speaketh of himself seeketh his own glory, but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him. जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। Jesus sought the Father's glory. और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता की इच्छा को ढूंढा। What false teachers and preachers do? जो झूठे प्रचारक और जो झूठे शिक्षक है वो क्या करते हैं? They seek their own glory. और वो अपनी खुद की बड़ाई को चाहते हैं। See how they present themselves. और वो हम देखें कि वो किस प्रकार से खुद को You can आगे see रखते हैं। those, you can see nowadays those in online you can see. और आज के दिनों में हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपनी बड़ाई को करते हैं। They call, especially in India, they call themselves prophets and apostles. और हम देखते हैं कि जो भारत देश में अगर हम देखते हैं तो वो खुद को जो है वो प्रेरित और परमेश्वर का प्रेरित और एपोस्टल कहते But हैं। in Revelation, we will see, we have seen regarding one church, the church found them and they were liars. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कलीसिया के विषय में कि जब वो उसे ढूंढते हैं तो वो उसे उन्हें झूठा प्राप्त करते So हैं। Jesus Christ was taught by Father. He was doing the Father's will and he was seeking to glorify the Father. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे और वो परमेश्वर पिता की बड़ाई करते थे। So we are seeing the evidence which he is giving. और हमने देखा कि उसने जो सबूत दिए हैं, He is not doing some things of his own. और वो जो है वो खुद के विचारों को यहाँ पर नहीं बताता है, Not doing, but the Father's will. परंतु वो परमेश्वर की इच्छा, उसने भेजने Then वाले we'll की see इच्छा verse पूर्ण करता 19 onwards. He is having a righteous, he is telling, yet you are judging me, but judge with a righteous judgment. है। और वो यहाँ पर कहता है कि आप अगर मेरा न्याय करते हो परंतु आप ठीक ठीक न्याय करो। The Jews, why Jews were angry? और वो जो यहूदी लोग थे वो क्रोध में क्यों थे? Because Jesus broke their tradition. क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके जो रूढ़ी और परंपरा थी उसे तोड़ दिया था। What was their tradition? और उनकी परंपरा क्या थी? They were keeping the Sabbath. वो शब्द के दिन का पालन On करते थे Sabbath, he healed a man. और उस शब्द के दिन में उसने उस मनुष्य को चंगा किया। And that is what they caused him to kill him. और वो इसी कारण से वो चाहते थे कि वो उसे मार डाले। They were accusing Jesus that he is breaking the law. और उस पर वो दोष लगा रहे थे कि वो जो है व्यवस्था को तोड़ रहा है। And yet they were planning to murder. और वो जो है उसकी हत्या का वो प्लानिंग कर रहे हैं। Trying to kill him, they are also breaking the law.
और वो उसे उसकी जब हत्या करते हैं तो उसके द्वारा वो भी जो है वो व्यवस्था को तोड़ते So हैं। they are not judging with righteous judgment. तो वो जो है वो एक धार्मिकता के साथ उसका ठीक ठीक से वो न्याय नहीं So कर रहे this हैं। inconsistency Jesus is exposing now. और ये जो इनकंसिस्टेंसी है इसको जो है वो प्रभु यीशु मसीह They दिखा are रहे हैं। saying one thing and doing other thing. और वो एक बात को कहते हैं और दूसरी बात को करते हैं। See now how Jesus responds to them. Verse 19. Did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law? Why do ye about to kill me? क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी तो अभी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता? तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? Right? And how they declared? The people answered and said, Thou hast a devil. Who goeth about to kill thee? और लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्टात्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? Right? Like thou hast a devil was that a common phrase in their tongue, in their mouth. और उनके उनके जो मुख थे, उनके जो शब्द थे, उसमें एक कॉमन फ्रेज था कि तुझ में दुष्टात्मा है। Right? Someone is saying anything, he directly they say, Thou hast the devil. और वो सीधे तौर पे वो कहते थे कि उसमें दुष्टात्मा है। Jesus' answer is verse 21. Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel. और यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैंने एक काम किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। What was that one work? He healed that impotent man in John chapter 5. और वो एक काम क्या था कि उसने शब्द के दिन उस व्यक्ति को चंगा किया था। Now how he explains further, 22. Moses therefore gave unto you circumcision, not because it was of Moses, but of the fathers. And ye on the Sabbath day circumcise a man. और इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी, यह नहीं कि मूसा की ओर से है परंतु बाप दादों से चली आई है, और तुम शब्द के दिन मनुष्य का खतना करते हो। The circumcision was from your fathers. और जो आपका जो खतना है वो आपके बाप दादों से And चलता है, Sabbath day you circumcise. और तुम शब्द के दिन उस मनुष्य के खतने को करते हो, That is the work. और वो जो है वो कार्य है। But you have problem, I healing a man. पर मैंने जब उसे चंगा किया तो आपको समस्या है। Verse 23. If a man on the Sabbath day receive circumcision, and that the law of Moses should not be broken, are ye angry at me because I have made a man very wit whole on the Sabbath day? जब शब्द के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने शब्द के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया। 24. Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment. पर मुंह देखा न्याय न करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। How were Pharisees judging? By tradition, by appearance. फरीसी लोग किस प्रकार से न्याय कर रहे थे? जो उनकी परंपरा है और जो मुंह देखा न्याय वो कर रहे थे। Right? But Christ judged them by the truth. परंतु प्रभु यीशु मसीह उनका ठीक ठीक न्याय करते थे। So never judge any spiritual matter by appearance. कोई भी आत्मिक बात जो है उसका कभी भी हम न्याय एक बाहरी तौर से ना करें, Right? Judge always by the word of God. और उसका हमेशा हम जो न्याय है वो पवित्र शास्त्र के वचनों के द्वारा करें। Then some came and said, This is the very Christ. और कोई आके कहता है कि ये तो ख्रिस्ट है। We'll see more evidence. 25. Then some of them of Jerusalem, is not this he whom they seek to kill? तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? 25. What? यह कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या यह वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? 26. हाँ। Sorry. परंतु देखो वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या सरदारों ने सच जान लिया है कि यही मसीह है? You can see the evidence now. His boldness. और हम जो है उसके सबूत को हम देखते हैं। He speaketh boldly, and they say nothing unto him. और वह तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। The question, do the rulers know indeed that this is the very Christ? क्या सरदारों ने सच सच ये जान लिया है कि यही मसीह है? Christ came with a boldness. और प्रभु यीशु मसीह जो है, जो ख्रिस्ट है, वो एक बोल्डनेस के साथ वो आया। When you are saved, he has also given you boldness. और जब हमारा बच्चा होता है, जब हम उद्धार प्राप्त करते हैं, तो वो बोल्डनेस वो When हमें you देता है। study the word of God in Acts chapter 4, और जब हम प्रेरितों के काम में जब वचनों का अध्ययन करते हैं, no, open Acts chapter 4. When you study the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं, see Acts chapter 4 verse 31. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. 4:14। 31.
जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। So, Word of God, if you are filled with the Holy Ghost, the Holy Spirit, you will speak the Word of God with boldness. अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए तो परमेश्वर का वचन हम हियाव से सुना सकते हैं। When man is standing on the Word of God, he has a full confidence. एक मनुष्य जब वो इस वचनों पर जब वो निर्भर होता है तो वो पूरी तरह से आत्मविश्वास प्राप्त करता है। 27. Howbeit, we know this man whence he is, but when Christ cometh, no man knoweth whence he is. इसको तो हम जानते हैं कि यह कहाँ का है, परंतु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वह कहाँ का है। Now, the people were thinking that we know that where Jesus came from. और लोग इस प्रकार से कहते और सोचते हैं कि हम जानते हैं कि मसीह कहाँ से आया है। They were thinking of his earthly origin. और वो जो है वो एक ये जो सांसारिक जो उसका ओरिजिन है उसके विषय में वो But they failed सोचते to हैं। understand his heavenly origin. पर वो जो उसकी जो स्वर्गीय जो उसका उगम है उसके विषय में वो नहीं सोचते हैं। 28. Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am, and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not. तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। 29. But I know him, for I am from him, and he hath sent me. मैं उसे जानता हूँ क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। This is the evidence. He talked about his boldness, then he is talking about his heavenly origin. और उसने सबसे पहले उसके बोलनेस के विषय में बताया और अभी जो है उसका स्वर्गीय जो उगम है उसके विषय में बताया। See how they were confused. 27. Howbeit we know this man's when he is, but they were talking when Christ cometh, no man knoweth whence he is. परंतु मसीह जब आएगा तो कोई नहीं जानेगा कि वह कहाँ का है। They were wrong about this. और वो जो है इसके विषय में झूठ है। Old Testament clearly said from where Christ will come. और परंतु पुराने नियम में सीधे तौर पे ये बताया कि मसीह कहाँ से आने वाला है। Right? He came from Bethlehem. वो बेथलेहम से आने वाला In है Isaiah you say he is born of virgin. और वो एक कुंवारी से जन्म लेगा। Matthew इस बात chapter को कहा। 1 is full genealogy. और David to Abraham to Jesus Christ. मत्ती उसके पहले अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की पूरी वंशावली वहाँ पे There है। was more evidence. और ऐसे बहुत से सबूत है। Verse next 30. Then they sought to take him, but no man laid hands on him because his hour was not yet come. इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो अभी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। See, we see the divine protection Jesus Christ had. और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर जो दैविक जो सुरक्षा उसके पास थी। They wanted to take him, they wanted to kill him. वो He was still publicly teaching them. और वो चाहते थे कि वो उसे पकड़ना चाहते थे, वो उसे मार डालना चाहते थे, फिर भी वो जो है वो कुल्लम कुला वहाँ पर सिखाता था। Yet no one was able to lay hands on him. परंतु कोई भी जो है जो किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि उस पर वो हाथ डाले, Because his hour was not yet come. क्योंकि उसका जो समय था वो अभी नहीं आया था। Why, you know? क्यों आपको पता If है? you go, Jesus Christ was standing before Pilate. Luke chapter, John chapter 19, you can see. John chapter 19 verse 11. He directly said to the Pilate, verse 19. John chapter 19 verse 11. Sorry. Jesus answered, Thou wouldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin. यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता, इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप So अधिक है। Christ has a control of his life and his death. और जो ख्रिस्त है उसका जीवन है और उसका जो मृत्यु है उस पर उसका कंट्रोल था। Right, the next we'll see. We have seen there is divine protection. Then we'll see the miracles. 31. And many people believed on him and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man has done?
फिर भीड़ में से बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य काम दिखाएगा जो इसने दिखाए। They were still not thinking that he is Christ. वो फिर भी जो है वो नहीं सोच रहे थे कि वो मसीह है, They were thinking the Messiah will come, will he do much more miracles? और वो इस प्रकार से सोच रहे थे कि मसीह आएगा और वो बहुत से आश्चर्य कर्मों को Jesus करेगा। was doing miracles. प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कर्मों को कर रहा था। Why? To point out his identity. क्यों? क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है उसको पॉइंट आउट करने के He लिए। healed the blind, उसने अंधों को दृष्टि दी, right? The lame walked, और जो लंगड़े थे वो चलने the लगे, lepers were cleansed, और जो कोढ़ी रोग थे वो शुद्ध the हुए, deaf started to hearing, जो बहरे लोग थे वो सुनने लगे, the dead were raised. और जो मृत था वो उठा। The greatest sign he gave is of his own resurrection. और सबसे महान चिन्ह उसने दिखाया कि उसने खुद के पुनरुत्थान के विषय में There were a lot of evidences. ऐसे बहुत से सबूतों को उसने दिया। Yet the problem was the unbelief. फिर भी जो उनकी समस्या थी वो अविश्वास था। Now he's talking about his departure. और वो अभी 33. उसके डिपार्चर के विषय में बताता Then है। the Pharisees, that the people murmured such things concerning him, the Pharisees and the chief priests sent officers to take him. और फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके करते सुना, और प्रधान याजक और फरीसियों ने उसे पकड़ने को सिपाही को भेजा। Then said Jesus unto them, Yet a little while I am with you, then I go unto him that sent me. और इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। 34. Ye seek me and shall not find me. Where I am, there ye cannot come. तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। What is Jesus is saying? I am going to the Father. कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। After his resurrection, his disciples witnessed the ascension. और उसके पुनरुत्थान के बाद उसके जो चेले हैं उन्होंने उस बात की गवाही को किया कि उसका जो पुनरुत्थान हुआ। 35. Then the Jews among themselves, whither will he go? और इस पर That we shall not find him. Will he go unto the dispersed among the Gentiles and teach the Gentiles? इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहा जाएगा कि हम इसे न पाएंगे, क्या वह उनके पास जाएगा जो यूनानियों में तितर बितर होकर रहते हैं और यूनानियों को भी उपदेश देगा। See, they were still confused. 36. What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me and shall find me not. यह क्या बात And whither है? I am, thither ye cannot come. यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। What are the evidences? His boldness, और उसके जो सबूत थे वो क्या थे? उसका बोल्डनेस, heavenly origin, जो स्वर्गीय उसका उगम है वो, boldness they saw. और उसने जो खुल्लम खुल्ले जो बातें की उसको उन्होंने देखा। The origin they had, scriptures. और उसका जो उगम था उसके पास उसके प्रति उनके पास वचन थे। Divine protection, no one was able to lay hand on him. और दैविक सुरक्षा उसके पास थी, कोई भी उस पर हाथ नहीं उठा रहा था। Miracles, और जो आश्चर्य कर्म थे, that is the evidence. और वो ये सब जो बातें हैं ये सबूत है He was gone again. कि वो फिर से जी उठा, Gone again, ascended. वो फिर से ऊपर गया, That was the also evidence. और वो भी एक सबूत है। Then now he says about the Holy Ghost. और अभी जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में वो कहता है। Now verse 37. In the last day, पर्व के अंतिम दिन, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Simple statement. If any man thirst, let him come unto me and drink. एक सीधा और सरल वाक्य, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। 38. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Now why he is talking about living water? और वो जीवित पानी के विषय में यहाँ पर बात क्यों कर रहा See the है? context, verse 37. In the last day, that great day of feast. पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, When in that day, what they were doing? और वो जो दिन था वो उस दिन में वो लोग क्या कर रहे It थे? was related that the priest was carrying the water, और वो जो याजक था वो पानी को लेकर था। right, at the feast of tabernacle. वो जो संदूक वहां पर था, वहाँ वो जो झोपड़ियों का पर्व वहां पर था, वहां पर वो पानी को लेकर था। Right, means पानी को लेकर नहीं, they were doing something related to water. और वो जो है पानी के विषय में कुछ तो वहां पर कर रहे So थे। Jesus saw the water and he's telling that if any man thirst, let him come unto me
and drink. और प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को देखा और उसने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और And पिए। he that believeth on me, out of his belly shall flow the living water. और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। What is those living water he is talking about? और वो जो जीवित पानी है और जो जीवित जल है वो क्या है? He is talking about the spirit-filled life. और वो जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन है। उसके Verse विषय में 39 it says, But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. That living water is the Spirit, right? For the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। Religion cannot satisfy you, education will not satisfy you, the world will not satisfy you. ये जो शिक्षण है और जो ये संसार है, ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। Right? The education and what I said? The religion. जो धर्म है और जो शिक्षण है, ये जो बातें हैं, ये हमें संतुष्ट नहीं कर So सकती। Jesus gave lot of evidences. और प्रभु यीशु ने ऐसे बहुत से सबूतों को यहाँ पर दिया। Right? Suppose a man is accused of a crime. और कोई एक पुरुष है जिस पर किसी हत्या का या फिर किसी का दोष लगाया गया हो, And there is much evidence और ऐसे बहुत से सबूत है that he is guilty. कि वो No, sorry, दोषी he है is not guilty. और कि वो दोषी नहीं है। There are clear video evidence that he has not done the murder. और एक क्लियर वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि उसने हत्या नहीं की है। There are witnesses, there are documents. और ऐसी बहुत सी गवाहियां है और डॉक्यूमेंट्स है। Yet the judge says, फिर भी जो न्याय करने वाला है वो I कहेगा have already made up my mind. कि मैंने मेरे खुद के दिमाग को, मन को बना लिया है, I don't want to see evidence. मैं इन सबूतों को देखना नहीं चाहता। So the problem was not the lack of evidence, और यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि सबूतों का ना होना, but the unwillingness to accept the evidence. परंतु जो सबूतों को जो अनविलिंगनेस है उसके प्रति, जो उसको स्वीकार करने में। Pharisees had scriptures, और फरीसियों के पास वचन था saw miracles. और उन्होंने अक्षर कर्म को देखा था। See Jesus, he was boldly preaching. They saw him. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हुए They देखा saw था। the sinless life. और उसने एक पवित्र उसका जीवन देखा था। They knew the prophecies. और वो भविष्यवाणियों को जानते थे, Yet they still rejected him. और फिर भी जो है वो उसका अस्वीकार करते So the हैं। problem was not in the evidence that they had. परंतु समस्या जो उनके पास जो सबूत थे उनमें नहीं It थी, was the conditions of the heart. परंतु उनके हृदयों की जो परिस्थिति थी उसमें थी। So what we can learn from, we have seen the divine evidence concerning Christ. और हमने देखा कि जो दैविक जो सबूत है प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में। So what we can learn, Jesus said, my doctrine is not mine. और but हम of his. देखते हैं कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरी जो शिक्षाएं है वो मेरी नहीं है, परंतु मेरे पिता की है। We can learn from practical application, be careful who teaches you. और हम प्रैक्टिकल तौर पर हम देखते हैं, हम उससे सीख सकते हैं कि No. हमें सतर्क रहना चाहिए कि हमें कौन सिखा रहा है। Right? Because Jesus said, my doctrine is not mine, but his that sent me. परंतु प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से कह रहा है कि मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, परंतु जिसने मुझे भेजा है उसकी है। Not every Bible teaching is biblical. और हरेक जो बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से जो शिक्षा दी जाती है वो सच नहीं होती, Not सही नहीं every होती। preacher commentary is correct. जो हरेक जो प्रचारक होता है और जो कमेंट्री होती है वो सही नहीं होती। Not any theological school or a Christian book is correct. और कोई भी जो धार्मिक जो स्कूल है School, हाँ. वो जो है वो सही नहीं होती। If you see 1 Thessalonians chapter 5, फर्स्ट थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय। this should be your verse when you are a sincere student. ये जो है एक आज्ञाकारी एक विद्यार्थी जब हम बनते हैं तो ये हमारा वचन होना चाहिए। First Thessalonians chapter 5 verse 21. Prove all things, hold fast that which is good. 1 Thessalonians 5:21. Prove all things. We should prove all things और हमें जो है हर एक बात को जो है वो प्रूव करना चाहिए, and hold fast that which is good. और जो अच्छा है उसे पकड़ कर रखना चाहिए। ठीक है? 1 Thessalonians 5:21. परमेश्वर और मसीह यीशु No, और 21. 1 Thessalonians है। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि Thessalonians Corinth वर्ड। अच्छा ओके तो थिस्सलुनी। ठीक है उसमें हाँ। prove all things, okay, and hold fast that which is good.
भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। That all thing is combined there. Is it combined? नहीं, वेगवेगळे. फक्त 20, 21. भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो. No, it's combined. Okay, let it be. वेगवेगळं That is दिलंय. the problem is prove all things. Bible says. कि सब बातें जो है उसको परखो. So be careful who teaches you. सो हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कौन हमें सिखा रहा Also है, say be careful what Bible you have. और हमें इसके विषय में भी केयरफुल रहना चाहिए कि कौन सा पवित्र शास्त्र हमारे पास है. I'll directly say that you should use King James Bible as your final authority. और मैं सीधी तौर पर आपको कहूंगा कि आप किंग जेम्स बाइबल को आपकी एक फाइनल अथॉरिटी के तौर Not पर because उपयोग करें. because I say, ये मैं इसलिए ना यूज करें कि मैं कह रहा हूँ, but you can prove all things. परंतु आप हर एक बात को सिद्ध कर You सकते can हो. prove that King James Bible is the word of God. कि आप इस बात को सिद्ध कर सकते हो कि किंग जेम्स बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है, And hold fast that is good. और जो अच्छा है उसे थामे रहना चाहिए. Because what nowadays the teachers of word of God are correcting the Bible. क्योंकि आज के दिनों में ऐसे है जो पवित्र शास्त्र में जो शिक्षक है वो वचनों को करेक्ट कर रहे हैं, Right? They are changing the verses. और वो जो है वो वचनों को बदल रहे हैं. But a teacher must never correct the Bible. The Bible must correct the teacher. परंतु जो शिक्षक होता है उसने पवित्र शास्त्र के वचनों को करेक्ट नहीं करना चाहिए, परंतु पवित्र शास्त्र ने उन्हें करेक्ट So be करना careful चाहिए. who teaches you. We can learn from that. सो हमें इसके लिए हमें केयरफुल रहना है कि आपको कौन सिखा रहा है. Jesus was taught of his father. और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसके पिता के विषय में उसको सिखाया गया था. Then if you want to understand some spiritual matter, you should be obedient. अगर कोई आत्मिक बात को हम समझना चाहते हैं तो वो आज्ञाकारिता हमें होनी चाहिए, Obedience opens the door to understanding. और वो आज्ञाकारिता जो है वो उन दरवाजों को उन बातों को समझने के लिए खोलती है. John 7:17. If any man will do his will, that you are obeying, what will happen? He shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. और यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैंने अपनी ओर से कहता हूँ. Right? When you read your Bible, जब कभी हम बाइबल को पढ़ते हैं this should be your attitude. तो ये हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए. You should ask, you should say to God, Lord, हमने प्रभु से कहना चाहिए, है प्रभु, whenever I read the Bible, जब कभी भी मैं तेरे वचनों को पढूं, whatever you show me, जो कुछ भी आप मुझे दिखाओगे, I am willing to obey. तो मैं उसकी आज्ञाकारिता के लिए मैं तैयार हूँ. I'll obey what you show me. और जो आप मुझे दिखाओगे मैं उसका आज्ञा पालन करूंगा. If you do that, अगर आप ये करते हो you will have an understanding. तो आपके पास वो समझ होगी. Then if 18 we see, he that speaketh of himself seeketh his own glory. जो अपनी ओर से जो कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता Whenever है. you do anything for God, जब कभी भी परमेश्वर के लिए हम कुछ करें examine your motive behind it. तो उसके पीछे का जो हमारा उद्देश्य है उसका हम परीक्षण करें. Especially if you are preaching, teaching or singing, और जब कभी भी हम प्रचार करेंगे, जब कभी हम सिखाएंगे, जब कभी भी हम गीत गाएंगे, serving or posting anything online, और जो किसी सेवकाई में हम होंगे या फिर कोई ऑनलाइन में कुछ हम पोस्ट करेंगे publicly, लोगों के बीच में, ask this question: who I am trying to glorify? तो हम खुद से ये प्रश्न वहां पर पूछे कि मैं किसकी बड़ाई चाहता हूँ. I am trying to get noticed by people of me. और मैं लोगों के द्वारा नोटिस खुद के विषय में मैं चाहता हूँ. Am I trying to get right with people? क्या मैं लोगों के साथ वो सही रिश्ता वापस चाहता हूँ. John the Baptist attitude we should have. और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो एटीट्यूड था He वो हमें must होना increase, चाहिए. but I must decrease. वो बढ़ना चाहिए परंतु मैं घटना चाहूँ. The goal of the ministry is not, oh, what a great preacher he is. जो सेवकाई का जो उद्देश्य है वो ये नहीं होना चाहिए कि कितना महान वो प्रचारक The है, goal of a ministry should be what a great savior we have. परंतु सेवकाई का उद्देश्य ये होना चाहिए कि कितना महान उद्धारकर्ता The हमारे पास next we है. can learn, do not judge by appearance. और वो उसके बाद हमने जो बात सीखनी चाहिए वो है कि बाहरी तौर पे हमें न्याय The नहीं करना Pharisees चाहिए. looked Jesus and said that he is the carpenter. और फरीसियों ने जो है वो उसके बाहरी तौर से देखा और उसने कहा कि ये कारपेंटर है. That people judge often others by the clothes they wear and the appearance they have, all those things. और Education, लोग wealth, position. जो है वो एक दूसरे व्यक्ति को जो है उनके बाहरी पहरावे से जो है उसका न्याय कर देते हैं. But they don't know the facts, what the scriptures say about Jesus Christ. परंतु वो जो है वो फैक्ट्स को और पवित्र शास्त्र उसके विषय में क्या कहता है वो उसे नहीं जानते हैं. If you turn with me to just anyone open, Proverbs 18:30. He that answereth a matter before he heareth it. Proverbs 18:13.
You should hear the whole matter instead of passing judgment. Proverbs 18 verse 13. हाँ, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। right. Never open your mouth कभी भी आपके मुंह को हमें खोलना नहीं चाहिए। or answer any matter before hearing the whole matter. वो पूर्ण जो वहाँ पर बात है वो पूरी सुनने के बाद हमने सुने बिना हमने अपना मुंह नहीं खोलना If you चाहिए। do that, अगर आप ये करते हो, if you open your mouth without hearing the matter, वो बात को नहीं सुनने के बाद आप अपने मुंह को अगर it is खोलते a हो folly and shame unto him. तो उसका अनादर होता है। वो So उसके never मूढ़ ठहरता judge है। by appearance, but judge the righteous judgment. परंतु वो जो है बाहरी तौर से जो है हमें न्याय नहीं करना है, परंतु एक सच्चा न्याय हमें करना है। Jesus Christ spake with boldness. और प्रभु यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला एक बोल्डनेस के साथ में वहां पर Right, बात किया। apostles were later got that boldness. और वो जो प्रेरित थे वो उसके बाद उन्होंने वो बोल्डनेस को प्राप्त किया। Today Christian need that boldness. और आज के जो मसीह लोग हैं वो बोल्डनेस वो हमें होनी चाहिए। Paul says, I am not ashamed of the gospel of Christ. और पौलुस इस प्रकार से कहता है कि जो उसका सुसमाचार है उससे मैं लजाता नहीं हूँ। Then we have seen that no one man was able to lay hand on Jesus. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था वहां पर जो प्रभु यीशु मसीह पर वो जिसने हाथ डाला हो। Jesus was on God's timetable. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर के वो टाइमलाइन में था। Right, you should be on God's timetable. और होना चाहिए कि हम भी जो है वो परमेश्वर के टाइमिंग Always trust God's timing. और हमने जो है वो परमेश्वर के समय पर विश्वास You करना may not चाहिए। understand His timing. और हम जो है उसके समय को हम नहीं समझ You may पाएंगे not understand why He's delaying. और हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि वो क्यों देर लगा रहा है, But you can understand His providence and His protection. परंतु उसकी जो योजना है और उसकी जो सुरक्षा है उसको हम समझ पा सकते Then we हैं। can learn spiritual truth 37. If any man thirst, bring your thirst to Christ. तो अगर कोई प्यासा हो तो वो मसीह के पास आए। Let him come to me, Bible says. और प्रभु यीशु मसीह और वचन यहाँ पर कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। Today Christians are trying to satisfy themselves with the world, और आज के जो मसीह लोग हैं वो जो है वो खुद को जो है वो संसार से तृप्त करना जानते हैं, with money, entertainment, relationship, and all those things. पैसों के साथ, वो एंटरटेनमेंट के साथ और वो रिश्तों के साथ। But that will not satisfy you. पर वो जो है वो आपको तृप्त नहीं करेंगे। Imagine you are sitting at a ocean side आप सोच सकते हैं कि एक समुद्र के किनारे आप बैठे हो and you are feeling thirsty. और आप एक खुद को प्यासा महसूस You कर रहे have हो whole water in front of you. और आपके पास पूरा पानी भरा है Why you are not drinking that then? और क्यों आप उस पानी को पी नहीं रहे If हो? you drink that water, अगर आप उस पानी को पीते you हो will get more thirsty. तो आप और भी प्यासे होंगे। Right? Why you know? Have you Sorry. tasted that? सॉरी, Right? It will get that ocean water is a type of world. क्योंकि वो जो समुद्र का पानी है वो एक संसार के समान The है। more you drink of that world, the more thirst it will create. तो वो उस संसार के और उस पानी को अगर हम अधिक पिएंगे तो और भी प्यासे हम होते So जाएंगे। examine how you means that your thirst और हमें इस बात का परीक्षण करना आवश्यक है कि हमारी प्यास कैसी है and come to the living water. और जीवित पानी के पास हमें आना The चाहिए। last thing we will see the decisive reactions of concerning Christ. और आखिरी बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के विषय में उनकी निर्णायक प्रतिक्रियाएं They क्या had है opinions, और he उनके- gave evidence. और उनके मतों को हमने देखा, उनके सबूत को हमने देखा। Now comes the time to decide. और अभी जो समय है कि वो डिसाइड करने का समय है। When the evidence was given, जब सबूत को दिया गया, see what happened. 40. People were divided. Many of the people, therefore, when they heard this saying, said, Of a truth, this is a prophet. But others said, This is Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee? तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। Right? Some said he is a prophet. Some say he is a Christ. और किसी ने कहा कि वो भविष्यद्वक्ता है, किसी ने कहा कि वो ख्रिस्त है। Some say, Can Christ come out of Galilee? और कुछ कहते हैं कि क्या ख्रिस्त गलील से आएगा। See, they had an incomplete information. और उनके पास जो है वो अधूरी जानकारी थी। Bible clearly says the prophet shall come from Galilee. और वचन पवित्र शास्त्र जो वो सीधे तौर पर बताता है कि जो मसीह है वो गलील से आएगा। You know Jonah, he was from Galilee. और क्या आपको पता है कि जो योना है वो गलील से है? And Jesus Christ compared himself with Jonah. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को योना के साथ जो है वो As तुलना Jonah की है। was 3 days and 3 nights in the heart of God, so shall the Son of Man be 3 और जिस days and 3 प्रकार nights in the heart of और जिस belly प्रकार of से योना जो है वो उस 3 दिन और 3 रात उस पृथ्वी के मछली के अंदर था, उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह है वो भी जो है उस कब्र में जो है 3 दिन और 3 रात रहेगा। So when the time came our decision,
there were division among people. और जब निर्णय लेने का समय आता है तब लोगों में वो विभाजन हो जाता है। The officers came to arrest him. Verse 42. 42 we'll read. Hath not said that, hath Jesus also said, hath not the scripture said that Christ cometh out of the seed of David and of the town of Bethlehem where David was. क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था? 43. So there was a division among people because of him. अतः उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। Whenever you preach Christ, और जब कभी भी आप ख्रिस्त का प्रचार करते हो, whenever you tell Christ, जब कभी भी आप ख्रिस्त को बताते हो, there will be division. तो वहां पर विभाजन होगा। People will hate you. लोग जो है वो लोग जो है आपके विरोध में होंगे। Because why means when you share the gospel. क्यों? क्योंकि जब आप कभी सुसमाचार को सुनाते हो, Because the time will come to decide them whether they will accept or not. क्योंकि वो समय आएगा कि वो स्वीकार करेंगे या उसका अस्वीकार करेंगे। But usually the response will be to delay. परंतु उनका जो प्रत्युत्तर, उनकी प्रतिक्रिया क्या होंगी कि और वो समय लगाएंगे And there will be a division. और वहां पर वो फूट पड़ेंगी। Try in your workplace. और आपके जो कार्य करने का जो स्थान है वहां पर हम इस बात Tell को gospel in your workplace हमारे हम जहाँ पर हम काम करते हैं वहां पर सुसमाचार को सुनाएं and see the division. और उस फूट को हम देखेंगे। They will see you as you are something different. और वो आपको इस प्रकार से देखेंगे कि आप अलग हो। Don't forget, don't be surprised. The world hated Jesus Christ first. और यहाँ पर जो है हमें चकित नहीं होना है क्योंकि लोगों ने पहले यीशु मसीह का जो है वो उसके विरोध में है। People were divided, और and the officers were amazed. और जो लोग हैं वो उनमें फूट पड़ी है और जो सिपाही लोग हैं वो चकित है। 44. And some of them would have taken him, but no man laid hands on him. उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। 45. Then came officers to the chief priests and Pharisees, and they said unto him, Why have you not brought him? तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? Why you are not bring the Christ? और क्यों आपने उस ख्रिस्त को यहाँ पर नहीं लाया? You know what was the reply? परंतु उनका प्रत्युत्तर क्या था? 46. The officers answered, Never man spake like this man. सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। They wanted to arrest that Jesus Christ. और वो जो है वो उस ख्रिस्त को, मसीह को, जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते The थे। way Jesus spake, परंतु जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बातें Matthew की, says he spake with authority. और मत्ती में हमने देखा कि वो एक अधिकार के साथ उसने So बातें the की। word of Christ also just stopped them. और जो यीशु ख्रिस्त का जो शब्द थे, वचन थे, उसने उनको रुका दिया। 47. Then we'll see the Pharisees, how the Pharisees are blind. The time has came to decisive reactions. They should decide something, but see how they were blind. 47. Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived? फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? Instead of examining the evidence, और वो जो सबूत वहां पर थे उसका they परीक्षण should करने के have बजाय, listened to the officers. और जो सिपाही लोग थे, What kind of man spake? These officers just told them, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा, right? Means they should have examined what the officers are saying. जो बातें सिपाही लोगों ने वहां पर कही, उन बातों का उन्होंने परीक्षण करना चाहिए। But what they reply? Are you also deceived? परंतु वो इस प्रकार से उनका प्रत्युत्तर है, क्या तुम भी भरमाए गए हो? They were thinking, if we our Pharisees didn't believe anything, the same people should do. तो वो इस प्रकार से सोच रहे थे कि जिस प्रकार से हम फरीसी लोगों ने जिस प्रकार से सोचा, तो बाकी लोगों ने भी उस प्रकार से सोचना चाहिए। Right? Not that you should make your own decision. तो और वो इस प्रकार से नहीं कि आप खुद के अपने निर्णय लेना चाहिए। But nevertheless, Nicodemus, we can see that he now takes the stand. परंतु निकोदेमस यहाँ पर जो है वो खड़ा होता है। 48. Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया But है? these people who knoweth not the law are cursed. परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित है। How are their Pharisees being deceived and are means so deceived and the deceiver? और जो फरीसी लोग थे वो किस प्रकार से थे? वो भरमाए गए थे यानी, Deceiving, they were deceiving. और वो खुद भी भरमाए थे और दूसरों को भी भरमा रहे थे। Right. So we see the Nicodemus just says, verse 50. Nicodemus said unto them, He that came to Christ by night, being one of them. 51. Doth our law judge any man before it hear him and know what he doeth?
निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था उनसे कहा कि हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वो क्या करता है दोषी ठहराती है। Nicodemus was saying with the scriptures, our scripture says we should first examine, hear the man, then we should decide something on और it. निकोदेमुस यहाँ पर कहता है कि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि पहले उस व्यक्ति की हम उसकी सुने और उसके बाद उसका न्याय करें। So there is a danger. और वहां पर एक डेंजर को हम देखते हैं। Men use the Bible जब कोई व्यक्ति इस पवित्र शास्त्र का उपयोग करता है to defend their position उनकी जो स्थिति है, उनकी जो पोजीशन है, उसकी सुरक्षा के लिए उसका उपयोग instead of करता है, obeying the Bible. परंतु उसका न्याय, उसका आज्ञा पालन करने के लिए What नहीं the Bible उपयोग करता। says. 52. उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। Right? Again they are saying search and look. और फिर भी वहां पर वो देखते हैं कि सर्च ढूंढो और देखो For out of Galilee ariseth no prophet. कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। 2 Kings chapter 14 we see that Jonah was out of Galilee. और दूसरा राजा उसमें हम देखते हैं कि जो योना है वो भी गलील से है। They are telling search and look, but they are not searching and looking. और वो वहां पर यहाँ पर वो कह रहा है कि ढूंढो और देखो, पर वो ढूंढ नहीं रहे So थे we और have देख भी seen नहीं रहे थे। they have a pride और उनके पास वो गर्व था that had blinded them. और वो जो है वो अंधा गर्व उनके पास था। The last time I have seen the sun shines on two things. और हमने पिछले समय में देखा कि Sun, जो सूरज है वो दो प्रकार से वो प्रकाशित करता है, means डालता है. दो प्रकार से वो प्रकाश डालता है। Means he shines on the clay and the wax. और वो एक मिट्टी पर वो अपना प्रकाश डालता है और एक वो वैक्स पर अपना प्रकाश डालता है। Wax, what will happen? It will melt. और वो जो मोम है उसका क्या होगा, वो पूरी तरह से पिघल जाएगा, Clay will become hard. परंतु जो मिट्टी है वो और भी मजबूत बनेगी, So the कठिन word of बनेगी। God is also like a sun. तो ये जो परमेश्वर का वचन है वो भी उस सूरज के समान If है। that heart is humble, और जिसका जो हृदय है वो नम्र है, the word of God will expose. तो जो परमेश्वर का वचन है वो उसे एक्सपोज A करेगा। heart that is proud, like these Pharisees, परंतु जिस प्रकार से इस फरीसियों के समान जिनका हृदय गर्व से भरा है, it will expose the hardened heart. तो Pride. उनका जो कठोर मन है उनको वो एक्सपोज करेगा। 53, every man went unto his own house. तब सब कोई अपने अपने घर चले गए There is no decision. और वहां पर कोई भी निर्णय नहीं This हुआ। whole chapter is filled with opinion, और ये जो पूरा जो अध्याय है इसमें हमने देखा कि ये मतों से बहुत भरा है questions. और ये प्रश्नों से भरा है। And then Jesus also talked about his evidence. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसके सबूतों के विषय में भी बात करते हैं But out of that questions he displayed his evidences. और उन प्रश्नों के द्वारा और उनके उत्तरों के द्वारा वो अपने सबूतों को वहां पर And when दिखाता है। time came to decide, they were all making excuses or they were blind. और जब वो निर्णय लेने का समय आता है तब वो सब जो है वहां पर उस एक्सक्यूजेस को देते हैं और वहां से निकल जाते So हैं। what can we learn from it? Do not, believe an incomplete information. हम कभी भी जो है वो अधूरी जो जानकारी उस पर We can विश्वास say, नहीं do not reject the truth, और हमें जो है वो जो सच्चाई होती है उसका अस्वीकार नहीं करना चाहिए, right? Because Jesus was telling the truth. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सच्चाई को बता रहे थे। Never make a pride to make you unteachable, और कभी भी इस प्रकार से हम गर्व ना करें कि कोई हमें सिखा ना पाए। right? Many Christians say, I know everything. और बहुत से मसीह लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ I know this John chapter 7. और मैं इस यूहन्ना उसके 7वें अध्याय को जानता I हूँ, will not read. मैं नहीं पढ़ूंगा I have read it once. और मैंने एक बार इसे पढ़ा है। But that kind of Christians we have. और इस प्रकार के मसीह लोग कुछ हम They say, I जानते have हैं read everything. और जो कहते हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, But whenever, what is the proper attitude you should have? परंतु जो प्रॉपर एटीट्यूड जो हमारे अंदर होना चाहिए Lord, teach me. कि प्रभु मुझे सिखा, Lord, if I am wrong, प्रभु अगर मैं गलत हूँ correct me through your word. तो आपके वचन के द्वारा मुझे सीधा करे, मुझे सही करे। If you follow tradition, you will be blind. अगर हम परंपराओं के पीछे चलते रहेंगे तो हम अंधे हो जाएंगे। Why we come to church? हम कलीसिया में क्यों आते हैं? To study the word of God. कि परमेश्वर के वचन का हम अध्ययन करें। Right? Individual study is also important, but you should study together, edify one another, encourage one another. हम व्यक्तिगत अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, परंतु जब हम साथ आते हैं, साथ में अध्ययन करते हैं तो एक दूसरे को हम बढ़ाते हैं, एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं। The next thing we can learn, do not follow the crowd. और उसके बाद हम देखते हैं कि जो भीड़ के पीछे हमें नहीं चलना चाहिए। 48, read 48. Have any of the rulers or the Pharisees believed on him? क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है?
That they were thinking, if none of us are believing, why are you believing? तो वो इस प्रकार से सोचते हैं कि हमारे अंदर से अगर कोई, हमारे में से अगर कोई उस पर विश्वास नहीं करता है तो आप उस पर क्यों विश्वास कर रहे हो। Believing in Jesus Christ is not by popularity. और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना ये प्रसिद्धता के साथ में नहीं है। Christianity is most what you say popular religion. People और हम इस प्रकार से नहीं है कि जो मसीहत है वो एक no, प्रसिद्धि की people say व्यक्ति like है। this that it is the worst worldwide religion, right? और लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो पूरे विश्व में जो है वो मसीह लोग पाए जाते But हैं। you will see the most who say they are Christians, they are not saved. परंतु हम देखते हैं कि जो लोग खुद को मसीह बताते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि उनका उद्धार नहीं हुआ होता है। So we have seen all these things, और हमने इन सब बातों को हमने देखा। right? So you should make a decision. तो आज हमें वो निर्णय लेने की जरूरत है What you think of Christ? कि वो ख्रिस्त के विषय में क्या सोचते हैं। People thought many things, और लोग जो है वो बहुत सी बातों को सोचते हैं। but now time will come when you examine yourselves what you think of Christ. परंतु अभी वो समय है कि हम अपना परीक्षण करें और हम सोचे कि हम ख्रिस्त के विषय में हम क्या सोचते हैं। So we'll stop here and next onwards we'll continue chapter 8. तो यहाँ पर हम रुकेंगे और आगे के अध्ययन में हम 8वें अध्याय को देखेंगे। So, okay.